Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. How are you today? Today we are going to have our first online lecture. Today we are going to read our first chapter, A Flash of Light. Alright, now let's turn to page number 84. So then we start reading. Before start reading, I want you all to write down the date and day on the top of the page. Alright? And put your fingers on the word that I'm reading. A flash of light. A flash of light. Everybody knows? A flash of light. Words to know. Cobbled. What does cobbled means? Made up of cobblestones, small rounded stones used for paving street. See, what are these? These are the cobblestones. राउंड स्टोन्स, गोल से शक्ल के पत्थर जो पेवमेंट्स होते हैं, फुटपाथ वगैरह पे बने हुए होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कहीं स्क्वायर्स भी होते हैं, रेक्टेंगल्स भी होते हैं. सो दीज आर कॉबल स्टोन्स. Distinguish, to be aware of the difference between two or more people or thing. Distinguish मतलब दो चीज़ों के बारे में आपको मालूमात जानना कि अगर कौन सी क्या उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं और इसमें क्या क्वालिटीज़ है. डिस्टिंग्विश करना. Donate, to give or present something, किसी चीज़ को देना या तोहफा देना. Especially for a good cause, स्पेशली ख़ास तौर पर जब वो किसी अच्छे काम की अच्छी नीयत से दिया जाए. ठीक है. फ्रैंक, अ फ्रेंच कॉइन वर्थ 100 centimes. ऑलराइट, व्हाट इज़ अ फ्रैंक? फ्रेंच कॉइन होता है. दिस इज़ अ फ्रैंक. अभी यूज नॉर्मली look, you can see it's called a franc, a French coin. Now let's read the next word. It's represent, to stand for something. Represent किसी भी चीज़ को represent करना, to stand for something. Like suppose I am a teacher and I represent the Bright Future Sound School, like that. So a French coin no longer in use worth 1/20th of a franc. सो जो होता है वो 1/20th मतलब अगर एक फ्रैंक में कितने होते हैं 20 होते हैं. तो जो अब जो है ये जो कॉइन है फ्रांस में ये यूज़ नहीं होता है. इफ़ यू कैन रीड इट्स अराउंड 1789 or 200 years almost old. Alright, so let's begin with the next word. Trampled, to tread heavily on something or somebody so as to cause damage or injury. To tread heavily or something or somebody so as to cause damage or injury. किसी भी चीज़ को कुचल देना या तकलीफ पहुंचाना या ख़त्म कर देना. ठीक है. Now let's begin reading. It was a cold day and Valentine हुए. Pronounce I. Like इसको हम पढ़ेंगे Valentine. I walked briskly down the cobble street. We have just read about the word cobble street. Briskly means बहुत तेज चलना. It was a cold day and Valentine हुए briskly down the cobble street. It was, you know who is Valentine? Valentine Hui is a person who has invented a school, or you can say who has invented the book for reading for the blind people. We will read about him in further lectures. It was getting dark and he was in a neighborhood he was not very familiar with. ठीक है. इट सेज कि रात हो रही थी, अंधेरा बहुत हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी अबाउट ईयर्स अगो. एट दैट टाइम देयर वर नो स्ट्रीट लैम्प्स एंड ऑल. सो वो अपने नेबर पड़ोस में था और वो वहाँ पे लोगों को कितना जानता नहीं था. फेमिलियर मतलब तो किसी चीज़ के ज़्यादातर मालूमात रखना. ही वॉज ऑन हिज वे होम and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. ठीक है. वो ये सोचते सोचते जा रहा था कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी गरम गरम जो है वो मेरी मतलब ग्लोइंग चमकती हुई मेरा गरम कमरा, मेरी चमकती हुई मतलब जो फायर उसने जलाई हुई होगी. ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड सो पीपल लाइट सम you can say fire the bones to make the house hotter at that time, like they burn fire sometimes, you can say.
द फायर दैट वुड ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल, जो आग है जो उसने घर में जला के रखी होगी वो उसको ग्रीट करेगी, मतलब उसे ग्रीट मतलब जैसे वी आर मुस्लिम्स, हाउ डू वी ग्रीट ईच अदर, वी से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, लाइक दैट। तो वो कह रहे हैं कि वो भी मुझे इस तरह से, मैं अपने ख्यालों में सोच रहा था कि मेरे पहुँचने पर जो है वो गरम गरम कमरा मेरा वेलकम करेगा। A carriage pulled by horses rattled past as the Valentine reached the corner of the street. एक कैरेज क्या होता है आपको पता है? घोड़ा गाड़ी, घोड़सवार। घोड़ा गाड़ी जो है वो गुजरती हुई जा रही थी, राटल मतलब आवाज़ करती हुई, पास्ट ऑन वैलेंटीन। वो जैसे ही वैलेंटीन के पास से गुजरी तो उसने कहा कि इससे पहले कि मैं कुचला जाऊँ, घोड़ों की ताकत चले, तो चलो मैं, वो पीछे हुआ। और पेवमेंट क्या होता है? When we cross the street, when we on the road, we always see a pavement. Footpath, it's a second word of footpath. Footpath is also an English word, it's not an Urdu word. And pavement are the synonyms of the footpath. Alright, so he stepped on the pavement. Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. इससे पहले कि वो रोड क्रॉस करता, उसने एक छोटी सी हल्की फुल्की सरसराहट की आवाज़ उसने सुनी। ही टर्न एंड सॉ इन द शैडो ऑफ अ वाइड डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विथ हिज हैट इन हिज हेड। जैसे उसने पलटा तो उसने देखा कि एक आदमी का शेडो आ रहा है जो अंधेरे में खड़ा हुआ है, उसके हाथ में क्या है? उसका हैट है। प्लीज़ सर, said the man, spare some money for the poor blind beggar. उसने कहा कि सर अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दें। If you have some extra, spare some money, मतलब प्लीज़ मुझे दे दें। Valentine was a kind, soft-hearted man. वो बहुत ज़्यादा रहम दिल और बहुत नरम दिल का आदमी था। He had thought, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सोच चुका था how to solve the problems of blind people. He had thought a lot about the problem of blind people. He had often wondered how he could be of helpful to the blind. मतलब वो ये सोचता था कि मैं किस तरीके से जो है ना अंधे लोगों की या ब्लाइंड पीपल की मदद कर सकूँ, ये सोचा करता था। ऑन हियरिंग दिस रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट सुनते ही, उसकी मदद सुनते या उसकी फरियाद सुनते ही एट वंस रिमूव वन ऑफ हिज ग्लव्स। ठीक है, उसने फ़ौरन से अपना ग्लव्स निकाला अपने हाथों से, and putting his hand into his pocket pulled from it a coin which he put in the blind beggar hat. ठीक है, उसने जल्दी से अपने पॉकेट में से कॉइन निकाला और ब्लाइंड बैगर के हैट में डाल दिया। ठीक है, what happened next is kind of very interesting. The blind beggar mumbled his thanks. उसने उसका शुक्रिया अदा किया and Valentine walked away. He was halfway across the road when he heard the beggar called out. जैसे ही वो थोड़े से रास्ते तक पहुंचा था तो उसने सुना कि बैगर जो है वो उसको बुला रहा है। कॉल आउट मतलब पुकारना। सर सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, मतलब उसने कहा कि जैसे हम किसी को बुलाते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, या प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, ज़रा रुकिए। वैलेंटीन टर्न्ड वंस अगेन एंड रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन। और वैलेंटीन पलटे और वापस से जाके उसने रिटर्न हुए उसकी तरफ, उसको जवाब देने के लिए कि व्हाट ही विज देयर समथिंग दैट ही वांटेड टू आस्क। श्योरली सर, सेड द बेगर हु वाज एन ऑनेस्ट मैन। श्योरली सर वाज द बेगर हु वाज एन, वो बहुत एक ईमानदार गरीब था, मतलब गदागर था। यू हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा, जो बैगर था उसने कहा यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपसे गलती हो गई है। यू हैव गिवन मी अ फ्रैंक इंस्टेड ऑफ अ सॉ। उसने कहा कि आपने मुझे फ्रैंक दे दिया है, मतलब फ्रैंक इज़ लाइक 20 रुपीज़, और वो कह रहा है कि आपने 1 रुपये की जगह मुझे कितने रुपए दे दिए? फ्रैंक को 20 रुपीज़ दे दिए हैं। तो उसने कहा कि आपसे गलती हो गई, आपको मुझे 1 रुपया देना था, आपने मुझे बड़ा कॉइन दे दिया, फ्रैंक दे दिया है। वैलेंटाइन वॉज एस्टॉनिश्ड, वो बहुत हैरान हुआ। ही वॉज नॉट सरप्राइज बाय द मैन्स ऑनेस्टी बट बाय द फैक्ट दैट ही कुड टेल सो क्विकली द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैंक एंड अ सॉ। How did you know that I had given you a franc? Asked Valentine. Oh, replied the beggar, it's enough for me to pass my finger over it. So it's enough, he says कि it's enough for me to pass a finger over it. अच्छा, अगर आप ये देखें इस कॉइन पे तो इस पे कैसे है, ये सारा इम्पोज हुआ होता है। अगर हम अपने 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ के भी कॉइन को फिंगर
पास करते तो हमें फ़ील होता है ना कि ये कौन सा कॉइन है। इसी तरह से अगर हम ये फ्रैंक का कॉइन देखें तो इस पर फ्लावर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फ्लावर्स। और जो अगर हम 100 का कॉइन देखें तो इसमें सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है एंड कॉलोनीन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब उसने उस पर फिंगर वो की तो उसको पता चल गया कि ये तो फ्रैंक नहीं, ये तो फ्रैंक है, सू नहीं है, जैसे जो नॉर्मली लोग उसको देते हैं। This was like the flash of light in Valentine's head. उसके जैसे कि उसके दिमाग में एक कड़क सी रोशनी जली कि this is how he can help blind people. See, Valentine allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of money in those days. उसने उसको अलाउ किया कि आप ये 20 रुपीज़ जैसे फ्रैंक रख लें, इट्स ओके। और उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा कॉइन कंसिडर किया जाता था। एज ही कंटिन्यू हिज वॉक ही थॉट हिमसेल्फ इफ़ द ब्लाइंड कैन डिस्टिंग्विश at the least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter, or a figure? In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised. Alright, so आज जो है हम यहाँ तक फिनिश करेंगे। इट सेज कि अगर जो है वैलेंटाइन को जो है कॉइन का पता चल सकता है तो वाई कुडेंट ही, लाइक वो क्यों नहीं डिस्टिंग्विश बता सकता कि वो लेटर है, वो क्यों नहीं पढ़ सकता कि वो साइन है या वो मार्क है। और वो उसने कहा कि क्यों कोई भी साइन को वो टच करके क्यों नहीं पता कर सकता। तो दीज ऑल क्वेश्चंस वर रनिंग इनटू हिज माइंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी विल रीड द चैप्टर finish our chapter in the next lecture. Till your next lecture, Allah Hafiz. I will share the copywork. Then in that copywork you are supposed to make the index with the final term title page and final term title page with this page, the flash of life title page, and afterwards then you have to do one page writing, and then you will start doing your written work. Till your next lecture, Allah Hafiz.